सो मिलिटेंट जो भागता हुआ आ रहा था, ही वाज जस्ट शॉक मेरे को देख के ना कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ Sir. गया। जब तक ही वाज एबल टू रिएक्ट तब तक माय 27 Jai Hind everyone and welcome to this most awaited episode of Voice of Radhakal, a podcast of the cadets by the cadets and for the cadets. Today we bring to you a story of perseverance, resilience and bravery, and for that we have one of the most highly decorated officers in Indian Army for gallantry. He is none other than Colonel retired Rajendra Kumar Sharma, Kirti Chakra, Shaurya Chakra and Sena Medal. Sir has led his life from being a Sipahi to a commissioned officer, playing vital role in wars like Kargil and other operations. Sir has also been associated with NCC for consecutive 5 years in Jammu and IIT Roorkee respectively. So without any further delay, let's dive into this extraordinary journey. Jain sir, on behalf of National Cadet Corps and Team Voice of Radhakal, I extend my warmest welcome to you. Jai Hind Deepak, and thank you so very much for glowing introduction, and pleasure is all mine So, to be in your podcast. So sir, before you talk about your army career, could you please elaborate about your early stages of life? Yeah, Deepak, so we are basically refugee from POK, Pak Occupied Kashmir, So, and in 1947, grandparents shifted to a place called Gadigad in Jammu. Gadigad sir. In Jammu, I was born there in village Gadigad, and started my education from a primary school in the village only, and then secondary education. It was 3-4 kilometers away from my house village. So, A place called Boar Camp. So I studied there. So this is how journey began. So, and, तो सर आपने डिसाइड कब किया कि I'll go for army? when I shifted from primary to secondary in Boar Camp, so there was a unit next to our school. So every day we used to see their routine. और उनको देख के मेरे को ये ऐसे लगा कि मेरे को आर्मी में जाना चाहिए. जो भी वो एक्टिविटी करते थे वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी. मेरे को वहाँ जाना, उनको देखना, जब भी पीरियड्स के बीच में ब्रेक होता था, आई यूज्ड टू गो देयर एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व देयर ड्रिल्स. और फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 इट वाज देयर इन माइंड कि मेरे को आर्मी में ही जाना है. और जब मैं 9th-10th में था तो वन child from the Kent only, he joined our class. He was from Ludhiana, name Lali. Yes, so sir. he told me that how we can join army. Lali. He told, Sir, it seems like Punjabi name. हाँ, Punjabi name. So he said that 10th करने के बाद और आपकी 16 साल से ज़्यादा एज होनी चाहिए तो आप रिक्रूटमेंट ऑफिस में जाके अपने आप को इनरोल करवा सकते हो. Sir. तो दिस इज़ हाउ माई जर्नी बिगन. राइट सर. तो आपने सर 10th क्लास के बाद ही ज्वाइन कर लिया? नहीं, 10th के क्लास के बाद मेरे पर बहुत सारा प्रेशर था फैमिली की तरफ से कि आगे पढ़ना है, आर्मी में नहीं जाना है. बट और मेरी 11th में सिटी में, जम्मू सिटी में एक फेमस हायर सेकेंडरी स्कूल था, रणबीर हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें एडमिशन करवा दी. जब मेरी एडमिशन वहाँ पे हो गई तो मैं बीच बीच में बंक मार के जाता था देखने के लिए रिक्रूटिंग ऑफिस में कि कब रिक्रूटमेंट होनी है. तो माई डैड वाज इन पुलिस, उसको खबर लग जाती थी कि इसने हाई स्कूल बंक किया, ही वाज सीन हियर देयर एंड तो लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर कि डोंट गो इन आर्मी. बट फाइनली वाज आई चूज़ कि आर्मी में ही जाना है. एक दिन जाके वहाँ पर सेलेक्ट हो गए और वहाँ से निकलने के बाद घर वालों को बताया कि अब तो सेलेक्ट हो गए, मैं जा रहा हूँ. तो फिर उनका रिएक्शन क्या था सर उसमें? मदर क्राइड. उसको ये था कि बड़ा लाडला बेटा है, और फादर जो है ही वाज अनॉयड लिटिल बिट, बट फाइनली सेड ठीक है, इट इज़ योर जर्नी यार, यू प्लान्ड इट, और मैं तो सब कुछ और करना चाहता था. राइट सर. यू गो अहेड. बट दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाज देयर फ्रॉम योर साइड. बिल्कुल. अब मेरे को आज भी ये होता है कि मैं अगर फौजी नहीं होता तो फिर क्या होता. तो सर बिल्कुल. तो सर आफ्टर ज्वाइनिंग आर्मी आपका फर्स्ट ऑपरेशन कब था? After joining army in 1986, 4-5 years I was posted in Dehradun. Sir. Then we went to Sikkim, and after Sikkim we came to Palampur. Sir. तो पालमपुर से उस टाइम पे ना मतलब कि इंसर्जेंसी इन वैली जस्ट स्टार्टेड, 2-3 साल हो गए थे. तो वहाँ पे हमारे को 6 महीने के लिए समर्स में वहाँ पर जाने का मौका मिला.
तो वहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे ऑपरेशन होते थे. आई वाज यूज्ड टू पार्ट ऑफ मैनी ऑपरेशन, बट वन सच ऑपरेशन जिसमें डायरेक्ट फायर फाइट में मैं इन्वॉल्व था, वो था इट वाज मंथ ऑफ नवंबर, 17 नवंबर आई गेस, और विलेज कॉल मुतलामा इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. राइट सर. सो उसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था बीएसएफ के साथ, और घरों की जो सर्च पहले कॉर्डन किया, उसके बाद सर्च चल रही थी, और सर्च के दौरान बाकी सारे लोग जो मतलब सर्च होती है उसी तरीके से कर रहे थे. तो मेरे को मैंने एक बार एक बॉक्स सा नोटिस किया, वो कश्मीर में हर घर में बनाते हैं अनाज डालने के लिए. राइट सर. तो आई क्लाइम दैट बॉक्स, और ऊपर चढ़ के तो मैंने उसका ढक्कन खोला, तो नीचे से somebody pointed AK towards me. और वो AK जैसे उसने की तो मैंने ढक्कन बंद करके वापस उसके ऊपर पैर रख लिया. इट वाज वुडन बॉक्स बाय द वे. वुडन बॉक्स. हाँ. और उसके बाद क्या हुआ कि आई शाउटेड कि जल्दी से कंपनी कमांडर साहब को बुलाओ. तो कोई और सुन रहा था दूसरा, तो उसने बोला कंपनी कमांडर साहब बोले, तो मेरे को भी पूछ रहे हैं कि क्या है. तो आई एम पॉइंटिंग कि यहाँ पर है, मिल गया माल. उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी कमांडर वाज कैप्टन रमन मलिक दैट टाइम. तो वो भाग के आ गए ऊपर. तो वो आके बोले कि क्या है. तो मैंने आई शोड हिम 4 मिलिटेंट्स अंदर ऐसे 4-5, मतलब कि इट वाज नॉट, मतलब कि ऐसे लगा जैसे AK-47 पे. तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि एक नहीं है, ज़्यादा है, बट वो एक ही पॉइंट की थी, बैरल एक ही पॉइंट की थी मेरे. राइट सर. तो ही टोल्ड मी कि यार तुम लाइन बेडिंग एक रस्सी जो है ना उसके साथ हिंज के साथ बांध के नीचे की तरफ फेंको, नीचे से कोई खींचेगा तो यू कम दिस साइड, तो मेरे पैरेलल आ जा. तो जैसे ही वो ढक्कन खुलता है तो वी विल स्टार्ट फायरिंग. Unfortunate part was कि militants were listening everything inside. अच्छा. What we were doing. Right sir. Foolish. They were very close ना sir. Very close, and it was wooden box. तो बिल्कुल सर. तो मोमेंट वो ढक्कन खोला गया तो उन्होंने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी. सर. हमने भी फायरिंग शुरू कर दी. और उस फायरिंग में क्या हुआ कि काफ़ी देर तक फायरिंग, मतलब कि 1 मिनट 1.5 मिनट तक फायरिंग चलती, बहुत सारी फायरिंग हो गई. उसके बाद उन्होंने दे थ्रो ए ग्रेनेड. तो ग्रेनेड जाके ना रूफ टॉप के ऊपर उसको भी ना बॉक्स को कवर करने के लिए एक ट्रायंगुलर सा रूफ टॉप बनाते थे, ताकि बारिश वगैरह में पानी उस बॉक्स के अंदर ना जाए. तो इट टच दी रूफ और वापस आके नीचे मेरे पाँव में गिरा. तो जब तक मैं उसका मतलब है कि पैर से इधर उधर करने की ये नीचे गिरा हूँ, तब तक इट ब्लास्टेड. वो बिल्कुल आपके पैर के पास इट ब्लास्टेड सर. तो मेरा ये लोअर काफ और टोज ऑफ शूज़ वगैरह ये सब कुछ, लेकिन वो शायद बिल्कुल उधर ही गिरा, तो इसलिए उसके स्प्लिंटर ना वो बाहर जाते हैं. तो कंपनी कमांडर वाज बैडली वुंडेड. उनको ब्रस्ट पूरा यहाँ पर थाइज में लग गया हुआ था, एंड ही फेल डाउन. और उसके बाद आई आल्सो जम्प्ड फ्रॉम द टॉप. तो मैंने कंपनी कमांडर को थोड़ा सा ऐसे ट्रैक करके, मैं भी वुंडेड था, तो उनको थोड़ा सा ना एक लेन सी बन रही थी 2 घरों के बीच में, थोड़ा सा खींच के वहाँ तक लेके गया, ताकि और इंजर ना हो, ताकि हम फायर से बाहर हो जाएं दोनों. सर. तो वहाँ तक लेके गया. उसके बाद तो BSF वाले आ गए, बट वी वर एबल टू एलिमिनेट 3 मिलिटेंट. राइट सर. एक सीरियसली वुंडेड था और एक जिंदा पकड़ लिया था उनमें से. राइट सर. हाँ, एक जिंदा पकड़ लिया था, बट चारों पकड़ लिए 3 सर. हाँ, एक मर गया शायद बाद में सर, और एक जो है जिंदा पकड़ लिया था सर. उनके पास से 5 AK-47, पीका गन, 5.7 ग्रेनेड, बहुत सारा वारलाइक स्टोर्स मिले थे. तो दैट वाज द फर्स्ट रियल इनकाउंटर जिसमें 1-to-1 आई वाज इन्वॉल्व. राइट सर. इनफैक्ट आई वाज द वन जिसने उनको नोटिस किया कि मिलिटेंट है. आई कॉल्ड माय कंपनी कमांडर, और उसके बाद ये इनकाउंटर हो गया. राइट सर. उसके बाद हमारे को हेलीकॉप्टर से मतलब 10-15 मिनट के अंदर बेस हॉस्पिटल है एक वैली में, वहाँ पर लेके गए. वहाँ पर भी ट्रीटेड. आई वाज देयर फॉर अ मंथ और सो. और कंपनी कमांडर को जो है चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनका बड़ा क्रिटिकल सा ऑपरेशन होना था, एंड दोज फैसिलिटीज वर नॉट देयर इन दी जम्मू, श्रीनगर. सो दिस इज़ हाउ. उसके बाद मेरे को 1 महीने का सिक लीव भी दे दिया गया. सिक लीव इज़ लाइक कि आपको रेस्ट करने के लिए कि घर जाके 1 महीना, और उसके बाद वापस जाके दिखाना होता है. सो सर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ऑपरेशन 1993, तो अभी तक कितने ऑपरेशंस किए हैं टोटल सर?
यार टोटल तो अनलिमिटेड है, बहुत बहुत जगह पे मैं फॉर एवर आई वाज इन फील्ड ओनली। सर तो बहुत सारे ऑपरेशन किए। मैं अफ्रीका में था, वहाँ पर कांगो में, सर वहाँ पर भी यही CI टाइप ऑपरेशन ही थे। सर तो ज़्यादा ना भी किए हो तो 300 ऑपरेशन 300 ऑपरेशन सर 300 ऑपरेशन किए होंगे, जिनमें सक्सेसफुल 100 रहे होंगे, 100-150 सक्सेसफुल रहे होंगे। That's a huge number, sir. हाँ, काउंट नहीं कर सकता, बहुत सारे ऑपरेशन किए मैंने। राइट सर लास्ट 38 years मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज इन Sir. ऑपरेशंस ओनली। सर तो सर अपार्ट फ्रॉम दीज ऑपरेशंस आप कारगिल वॉर के भी पार्ट थे, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कारगिल वार 99 इससे पहले हम हैदराबाद में पोस्टेड थे, सर और हैदराबाद से हमारी नॉर्मल पोस्टिंग आई थी कारगिल के लिए एज Sir. कारगिल डिफेंडिंग बटालियन। तो उस टाइम पे आई वाज यंग ऑफिसर, नए नए बने थे, सर और 12-13 साल रैंक्स में लगा के उसके बाद बने थे, तो बड़े खुश घूम रहे थे हम कि। सर और मई जून में हमारी पोस्टिंग वहाँ पर आ गई। पहले एडवांस पार्टी गई, Sir. 1 महीने के बाद ये अलार्म आना शुरू हो गई कि कुछ यहाँ पे अलग से हो रहा है कारगिल Sir. की पहाड़ियों पे, ठीक है। और उसके बाद हमारे को जल्दी जल्दी में भेजा गया, जो ट्रेन 12-15 दिन लगाती है Sir. वहाँ पर पहुँचाने में, उन्होंने 4-5 दिन में पहुँचा दिया। सर वहाँ पर जाके बीडीबाड़ी में जब हम उतरे तो आगे 100 ट्रक लाइनअप थे कि फटाफट ले जाने के लिए हमारे को। तो नेक्स्ट 2-3 days वी वर इन कारगिल से आगे है एक जगह बुदकरबो, सर वहाँ पर हम पहुँच गए थे। एंड वी बिकम पार्ट ऑफ कारगिल वार इन बटालिक सेक्टर अंडर 70 ब्रिगेड। 17 पीरियड। और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये था कि उस टाइम पे ना उतनी तैयारी नहीं थी, सर ठीक है। सडनली कारगिल हो गया और हम हैदराबाद से जा रहे हैं। Sir. नॉर्मली माउंटेन्स में आपको एक्लेमेटाइज करना पड़ता है अपने आप को, आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, वेपनरी होना चाहिए, तो वो सब कुछ जो है उसके लिए वी वर नॉट प्रिपेयर एंड नन द सिस्टम वाज प्रिपेयर, सर है ना। तो लेकिन हमारे को ऑर्डर मिले कि जाओ जाके ये बटाली सेक्टर में ये पढ़िए। तो वहाँ के ना 2 चीज़ें, एक तो खालूबार फेमस ऑपरेशन, सर वो हमने लिया था, जिसपे मेजर अजीत वाज द कंपनी कमांडर हु टुक द बॉयज मोहम्मदन वाइज टू खालूबार। सर और वो लड़ा इन्होंने 3 दिन, और जब लास्ट राउंड लास्ट वेपन रह गया था तब तक ये लड़ते रहे वहाँ Sir. पे। एंड वी वर द इंस्ट्रूमेंटल टू गेट दैट खालूबार। राइट और मेरे को भेजा गया था, आई वाज टास्क फॉर .5465। सर .5465 was the highest point in Batalic sector, राइट सर and I was able to capture 2-3 attempt में राइट सर I was able to say capture .5465. 5465 सर जी। सर कितनी हाइट पे था दिस पॉइंट? It was above 17,000 feet. 17,000 फीट जी। सर। सर वो एट सर एट दिस मच हाइट तो वो काफ़ी मुश्किल होता है नीचे से फाइट करना। हाँ, वही मैं जो बता रहा हूँ कि जो वेदर की वजह से प्रॉब्लम आती हैं, Sir. जो पॉसिटी ऑफ इक्विपमेंट की वजह से आती हैं, और मतलब कि हम राजस्थान के डेजर्ट में Right, sir. लड़ाई की तैयारियां करके 3 साल इधर की एक्सरसाइज करके उधर गए थे, और माउंटेन्स में सडनली विदाउट प्रिपरेशन की, तो माउंटेन वार लड़ना। Right, sir. बट इंडियन आर्मी है, कुछ भी कर देगी यार। हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल एनीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी। एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर इंडियन आर्मी। Right, sir. सब ने किया, हमने भी किया, मेरी यूनिट ने भी किया है, एंड सबसे बढ़ चढ़ कर किया हमने। राइट सर तो ये है। राइट सर। तो सर व्हेन वी टॉक अबाउट कारगिल वॉर, तो जब भी ये किस्से सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर मूवीज़ में देखते हैं, तो अभी भी ना सीना चौड़ा हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन सारी चुनौतियों के बाद भी इंडियन आर्मी ने वहाँ पे जीत हासिल की। बट दैट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी सर। नहीं, एज इंडियन होना भी चाहिए यार, व्हाई नॉट। बिल्कुल सर बिल्कुल सर। तो सर आपने कब डिसाइड किया कि यू विल बी एन ऑफिसर व्हेन यू आर ऑलरेडी इन इंडियन आर्मी एज ए सिपाही? यार मेरी यूनिट ना 2 गार्ड्स फर्स्ट कैनेडियर, अगेन ग्रेट बटालियन। Sir. पहले बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड मैन। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना लाइफ में, बहुत अच्छा होता रहा Sir. है। आई वाज इन सच ए बटालियन टेस्ट 2 गार्ड्स फर्स्ट कैनेडियर Sir. कि बड़ा मोटिवेशन मिलता था मेरे को। ऑफिसर्स मेजोरिटी मेरे को पर्सनली जानते थे, Sir. और वो बहुत सारे ऑफिसर्स ने मेरे को कई बार, मतलब गिल सर थे, जीत सर थे, कर्नल भूपिंदर थे, और AK वर्मा सर थे। सर तो ये मेरे को बोलते थे कि वाई डोंट यू ट्राई फॉर ACC। राइट सर। हाँ, तो
बस उनका मोटिवेशन और कि ये कर सकते हैं, ये हो सकता है। और मेरे को भी वहाँ पर आर्मी ज्वाइन करने के बाद ये लगा कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो सारी हैं, लोग पैम्पर भी कर रहे हैं, तो मेरे को इसके लिए आगे आना चाहिए। राइट सर। तो देन यू नो व्हाट हैपेंड कि आई वाज पोस्टेड विद ब्रिगेड हेडक्वार्टर, 18 आर्मर्ड ब्रिगेड हेडक्वार्टर। तो वहाँ पर ना कोई नई पॉलिसी आई कि SCO कमीशन शुरू हो रहा है, और उसके लिए क्या क्या QR चाहिए, कितना पढ़ा वो तो सब कुछ उसमें इट वाज मेंशन। तो मैंने वो लेटर अपनी यूनिट में भी भिजवाया और मैंने खुद भी फॉर्म भर लिया। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट वगैरह होने थे DV हेडक्वार्टर वगैरह में जो कुछ भी, और आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैंने 6 महीने तैयारी की और 6 महीने के बाद मेरा सब कुछ ठीक हो गया। और पहली अटेम्प्ट में, हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में विदिन 6 मंथ, ओनली 6 मंथ प्रिपरेशन, राइट सर, एंड आई वाज थ्रू। तो सर आपने मैनेज कैसे किया कि इवन व्हाइल सर्विंग आपने पढ़ाई भी की? मैंने बताया ना आपको कि मेरे साथ बहुत कुछ हमेशा अच्छा होता रहा है सर। तो बस ये था कि मैंने रिलीजियसली वेरी सिंसियरली तैयारी की थी। जो 6 महीने लगाए वो 6 महीने मेरे को नहीं लगता कि मैं सोया हूँ। एंड माई वाइफ शी वॉज देयर विद मी 24/7, जो मेरे साथ जागती रहती थी। जितने भी SSB की तैयारी के लिए टेस्ट होते हैं तो वो मेरे को वर्ड दिखाएगी, वो इंटरव्यूइंग अफसर बैठ जाएगी, वो सारा कुछ करेगी। और सुबह 4 बजे तक मैं बैठ के पढ़ता था, 4:30-5 बजे तैयार होकर फिर PT के लिए जाना और उसके बाद वापस। सो ओनली 6 मंथ्स प्रिपरेशन, और बिल्कुल मैंने शुरुआत से शुरू किया था। बट मैम हैज आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस। उससे पहले मैं सोचता रहा कि मैं ऑफिसर बनूं, शादी भी तब मेरी नई हुई थी। उससे पहले मैं सोच रहा था कि मैं ऑफिसर बनूं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की। उसके आने के बाद ये हिम्मत हो गई कि that's so lovely sir. I became, that's lovely sir. Sir, you were also associated with NCC, so how did that experience go? यार I was not associated with NCC like you as cadet. Sir, वो तो अरमान ही रह गए थे मेरे। 83 था, 83 में I cleared my 9th 10th। तो उस टाइम पे NCC का ज़्यादा रोल होता नहीं था वहाँ पर हमारे उसमें। बट वन आई वॉज थ्रू फॉर बोर्ड, और जब मैं कर्नल के लिए अप्रूव हो गया, बट आई वॉज एज बार, बीइंग SCO कमीशन आई वॉज एज बार, तो आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर कमांडिंग ए रेगुलर यूनिट। राइट सर। तो आई वॉज गिवन ए चॉइस कि या तो मैं रेजिमेंटल सेंटर में जाके वो अपना ट्रेनिंग बटालियन, एडम बटालियन कमांड करूँ, या फिर NCC के लिए। तो इमीडिएटली आई प्रेफर्ड NCC सर। और NCC इसलिए भी प्रेफर की क्योंकि उससे पहले ना आई हैड द टेन्योर ऑफ जबलपुर इन माय रेजिमेंटल सेंटर। तो वहाँ पर हमारे मार्टियस के बच्चों के लिए एक हॉस्टल था। तो जब वहाँ पर गया तो 20-30 बच्चे उस हॉस्टल में रहते थे, छोटे छोटे, फ्रॉम क्लास 2nd 3rd to 10th तक। तो मैंने वॉलंटियरली जाके वहाँ पर ये किया कि इन बच्चों को लुक आफ्टर मैं और मेरी वाइफ करेंगे। तो उनके साथ जो 1-1.5 साल में एसोसिएट रहा ना, तो वो इट वॉज वेरी, मतलब है कि इनर्जेटिक फॉर बोथ ऑफ अस। और मेरे को वहाँ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी कि ये यूथ के साथ एंगेज होना। और जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मेरे को NCC बटालियन मिल रही है, तो आई जस्ट रेज माई हैंड और पहुँच गया वहाँ पे। I'll go to the young minds there. हाँ। और जब वहाँ पर पहुँचा तो आई वॉज पोस्टेड टू 2 J&K गर्ल्स बटालियन NCC। मेरे ऑफिस की हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि 80% डिफिशेंट ऑफ स्टाफ। इट वाज PI स्टाफ, सिविल स्टाफ, जितने भी लोग होते हैं, एक क्लर्क, ये थी वहाँ पर हालत। एंड आई वाज मैनेजिंग 3090 कैडेट, 3090 कैडेट थे मेरे पास, गर्ल्स कैडेट। आई वाज कवरिंग दी एरिया ऑफ 151 किलोमीटर, 151 kilometer in radius, and 5 districts I was. 5 districts. It was Jammu, Samba, Kathua, Udhampur और रियासी। उन 5 districts के लिए एक ही यूनिट थी। एंड यू कैन इमेजिन कि कहाँ कहाँ से लोग आके वो NCC करते रहे होंगे। बिल्कुल सर। एंड कैंपिंग ग्राउंड वाज एट नगरोटा। सो जब जाके वहाँ पर मैंने देखा तो मैंने वो पहले तो अलार्म रेज किया कि यहाँ पर मेरे पास स्टाफ वगैरह बहुत कम है। बट जब मेरी कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन होना शुरू की, मैंने स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू किया, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर तो यार कोई स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं है। ये खुद उनको देख देख के मैं मोटिवेट होता था फ्रैंकली।
और मैं नटशेल आपको बताऊंगा कि जब मैंने वो यूनिट छोड़ी तो पहला तो मेरे जाने के 3-4 महीने के बाद ही उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत और विलेज अडॉप्शन का था एक और डिजिटल इंडिया का। गांव में जाके मेरे बच्चे लोगों को ये भी सिखाते थे, लेडीज़ को, बूढ़ी औरतों को, कि आप मोबाइल से कैसे पेमेंट कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कैसे, बहुत कुछ, बहुत सारी जाके सिखाते थे। और मेरी यूनिट ने ऐसा रोल वहाँ पे प्ले किया कि पहले तो एक शीखी साम्याल कैडेट थी, शी केम फर्स्ट इन ऑल इंडिया एस्से राइटिंग ऑन स्वच्छ भारत अभियान एंड ये यहाँ शिक्षा भवन में उसको प्राइम मिनिस्टर से शी गॉट ट्रॉफी एंड 50,000 right sir cash award. So it immediately worked as a after motivation. that governor of J&K he gave her 50,000. Right sir. This was a motivation for other cadets. Right sir. उसके बाद जब मैंने यूनिट छोड़ी तो उस यूनिट को 18 अवार्ड मिले, जिनमें से 3 रक्षा मंत्री पदक, रक्षा राज्य मंत्री पदक और उसके बाद सेक्रेटरी लेवल का कमेंडेशन कार्ड होता है। उसके बाद ये अपना डीजी कमेंडेशन कार्ड, मेनी नंबर ऑफ। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इतना इनिशिएटिव था उन बच्चों में कि उसके बाद ये पूरे ऑल इंडिया में इसको कॉपी किया गया कि दे वर दी फर्स्ट वन कि इन्होंने कारगिल विजय दिवस वाले दिन J&K के जितने भी मार्टियर्स थे उनके घरों में जाके उनके साथ बातचीत करना, उनको मोमेंटो देना और ये सारा कुछ। और ये गांधीनगर कॉलेज के गांधीनगर वुमेन कॉलेज गांधीनगर के कैडेट्स ने और ANO ने अपनी कंट्रीब्यूट करके वो मोमेंटो बनवाए और वो जाके उनके घरों में जाके दिए। और इट वाज पीक ऑफ कोविड पीरियड और अपनी टैक्सियाँ इन्होंने मैनेज की, अपना ये सब कुछ। इट वाज ए हिस्ट्री मतलब क्रिएटेड। और उस टाइम पे मतलब कि नॉर्मली क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाती है खबर कि बच्चों ने ये, कैडेट्स ने ये किया है। डीजी जो थे उस टाइम पे जनरल चोपड़ा वाज दी डीजी, उन्होंने सारे डायरेक्टरेट को ये मैसेज किया कि यार ये J&K डायरेक्टरेट की गर्ल्स क्या कर रही हैं, ये क्या हो गया सर। और उनको लोगों ने मतलब है कि डीजी को लोगों ने, रिटायर्ड जनरल ने, पता नहीं कैसे वो वायरल हो गया, उन्होंने मैसेज किया कि ये हुआ है। तो आई सैल्यूट दैट बटालियन। दैट्स सो काइंड जेस्चर सर उनकी तरफ से। और 18 अवार्ड्स इन 2-3 ईयर्स। नहीं तो उससे पहले वो बोर्ड खाली था। अगर आज वहाँ पर जाके देखो तो मैं जाता नहीं हूँ वहाँ पर, क्योंकि कोई और अफेंडेड ना हो जाए कि यार इसके टेन्योर का सब कुछ यहाँ पर हो रखा है। एंड इट वाज नॉट मी, इट वाज कैडेट्स, प्योरली कैडेट्स, और ऑल द क्रेडिट गोज टू देम। राइट सर। दिस इज हाउ। एंड उसके बाद यू नो अगेन आई वाज पोस्टेड टू 3 UKCTR NCC बटालियन ऑफ IIT रुड़की। पता नहीं मेरे को यहाँ पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मस्ट बी द रिचेस्ट बट NCC बटालियन ऑफ यू नो ऑल इंडिया। दैट्स सर IIT रुड़की किंग साइज। मतलब है कि वहाँ पर जाके ना, अगर मैंने वहाँ पर बोला होगा, अच्छा इट इज़ सेल्फ यू नो, वो IIT वाले ही सारा सेल्फ फंडेड है। तो मैंने अगर एक कंप्यूटर मांगा तो वो बोलेंगे यार आप सारे रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हो इसको। हाँ, इट वाज लाइक दैट। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ दैट पीरियड वाज कि इट वाज अगेन पीक ऑफ पेंडेमिक और IIT रुड़की खाली थी और सारे कैडेट्स को घर भेज दिया हुआ था। और जो कुछ भी हम कर पाए 2-4 बार हम वो उस पर कर पाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पे इकट्ठा होना पड़ता था। तो ऑनलाइन वी वर एबल टू डू, बट ब्रिलियंट कैडेट्स। उनमें से एक की मैं आपको बताऊंगा कि वन ऑफ द कैडेट ही केम और वो बोलता है कि सर मैं IIT कर रहा हूँ लेकिन NDA, आई वांटेड टू जॉइन NDA। तो मैं बोला यार IIT छोड़ के NDA क्यों? बोलता है, तो मैं मतलब पूछा उसको कि तू कर लेगा? अरे सर ये तो बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूँगा। वो जाके NDA रिटर्न अपियर हुआ, वो क्लियर हो गया। आके बोलता है SSB में ये पूछते हैं, वो मेरे को बता रहा है कि तो मैं वो भी कर लूँगा। मैं बोला यार चल ठीक है, ऑल दी बेस्ट। हो गया तो NDA से भी सिलेक्ट हो गया, मेरिट में भी वो टॉप, एंड नाउ शायद उसका वो कहीं पे लेफ्टिनेंट वगैरह बन गया होगा। आई एम टॉकिंग 20, तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो बनने वाला होगा, मतलब कि ही मस्ट बी ना। तो ये था, तो बड़ी टॉप क्लास स्क्रीन वाज देयर। दैट्स अप्रिशिएबल सर। राइट सर। तो सर हाउ डू यू थिंक कि NCC ने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है नेशन बिल्डिंग? यार आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब कि NCC हैज़ कंट्रीब्यूटेड इमेंसली। मतलब है कि किसी भी फील्ड में देख लो, टुडे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स NCC कैडेट। 50% तो नहीं, 30-40% लोग आर्मी में जाते हैं। एंड आर्मी कैसे कंट्रीब्यूट करती है, एंड आई टेल यू आवर नेशन इज प्राउड ऑफ NCC आफ्टर आर्मी। यू आर द बिगेस्ट फोर्स विच इज डिसिप्लिन, विच इज ग्रूम्ड, which is patriotic or which is disciplined.
तो इससे ज़्यादा बड़ा वो मतलब है कि सेकंड जो है टीयर क्या चाहिए राइट सर इस नेशन को टू बैक अ तो नेशन हाँ राइट सर मैं आपको बताता हूँ कि पीपल फील प्राउड ऑफ यू और ख़ास करके जब आप किसी ड्यूटी के लिए डिटेल होते हैं ना कि आज यहाँ पे रोडों पे आज स्वच्छ भारत करना है आप Right, यहाँ sir. पर Right, sir. और मैंने लोगों को देखा है दिल से दुआएं देते हुए कि हमारे पास ऐसा यूथ भी है राइट सर तो मतलब कि आवर फ्यूचर इज सिक्योर टिल द टाइम वी हैव एनसीसी राइट सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स दिस इज हाउ एवरी इंडियन बिलीव्स राइटली सेड सर राइट सर मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आपको मिलिटेंट से एक बारी थ्रेट लेटर मिला था तो उस थ्रेट लेटर के बारे में कुछ बताइए Actually, I was posted in counter-insurgency operations areas, सर and I was working with one battalion. But you know what happened? That battalion was moving to peace area. सर और जो नई यूनिट आ रही थी उसी इलाके में हमारे को बदली करने के लिए मेरे लिए मैसेज आया ऑर्डर आया ऊपर से कि आई एम गोइंग टू बी इन दिस सेम बटालियन विच इज़ रिलीविंग अस मतलब है कि बाकी पूरी यूनिट जो है वो दूसरी जगह जा रही है लेकिन मैं नई आने वाली यूनिट के साथ जो है रहूँगा राइट सर रहूँगा मे बी बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशनल एक्सपीरियंस या मेरे पास खबर बहुत होती थी राइट सर इसके लिए तो आई वॉज अपसेट क्योंकि मैंने 2-2.5 साल जिनके साथ काम किया था वो सारे जा रहे हैं वो भी रो रहे हैं मैं उनके साथ ही मैंने ट्रेनिंग की थी सब कुछ किया था ऑल्दो एरिया के बारे में सब कुछ था लेकिन आपको कुछ उसके रूटीन के बाद थोड़ी सी रिलीफ भी चाहिए होती है कि इतना सही कर तो लिया है सर तो जब आया तो कुछ चारा कोई नहीं था तो 2-3 दिन में परेशान रहा वो कि हाँ मेरे को वो भी जाते समय मेरे को गले लगा के रो रहे हैं कि साहब को इधर ही छोड़ के जा रहे हैं और मेरे को ये हो रहा है कि साले जा रहे हैं और मेरे को मैं कैसे छोड़ के जा रहे हैं तो इट वाज 19th of January 2009 और 23rd जनवरी को क्या हुआ कि नीचे से ना वो मेरा रनर जो है वो न्यूज़पेपर और वो लेके आया पोस्ट के नीचे एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो भी लेटर बॉक्स बना हुआ था वहाँ पर वो सब कुछ डाल के जाते थे और वो लेके आया तो वो न्यूज़पेपर और वो लेटर लेके आया तो लेटर मैंने देखा खोला तो वो सारे कोई कंप्लेन लेटर आता था कोई अप्रिसिएशन लेटर आता था कोई असम राइफल से मदद मांगने के लिए कुछ बोल के जाता था इस तरह से होता था तो वो लेटर मैंने खोला तो उसमें वो लिखा हुआ था कि इट वाज एग्जैक्टली लाइक दिस कि सॉरी टू इन्फॉर्म यू मेजर शर्मा दैट योर नेम हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग लिस्ट यू आर ए गुड मैन बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अच्छा तो ये लिखा था उसमें लेटर में उसमें हाँ लिखा हुआ था लास्ट में लिखा हुआ था टेक केयर बिग मैन तो इट वाज लाइक दैट तो इट रियली अपसेट मी अभी मैं उस पोजीशन में था कि नई यूनिट में आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं मैं अपने सीओ को वो चिट्ठी दिखाता हूँ तो सीओ बोलेगा कि यार ये डर गया और किसी को बताता हूँ तो वही और मुंह इसने पहले बना रखा था कि वो मेरी यूनिट चली गई और मेरे को इधर छोड़ दिए तो और दूसरा ये हो गया कि पहले मिलिटेंट्स वर्सेस आर्मी था अभी ये तो 1-to-1 हो गया यार अभी तो थ्रेट मेरे को हो गई एग्जैक्टली सर नॉर्मली ये होता है कि आर्मी जो है और मिलिटेंट्स के बीच में होता है जो कुछ भी बिल्कुल सर मतलब कि जितनी भी आर्मर्ड फोर्सेस बेल्ट फोर्सेस हैं उनके बीच में उनके लिए होता है ये तो एग्जैक्टली स्पेसिफिकली आपके लिए लिखा था वो तो 2-3 दिन में काफ़ी सोचता विचारता रहा इसके बारे में कि क्या किया जाए आई कॉल्ड ऑल माई सोर्सेज अच्छा कई सोर्सेज ऐसे थे कि वो वैसे ही मेरे से डिटैच हो गए थे क्योंकि इनको ये था कि ये यूनिट जा रही है तो ये भी चला जा रहा होगा उनको नहीं पता कि मैं यहीं पे हूँ फाइनली खैर मैंने बुलाया सबको मैं काफ़ी जो भी लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन जो भी एजेंसीज इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैं सबके पास गया कि मेरे को इस बंदे का पता चाहिए तो वो सारे बोले यार ही इज़ ए बिग मैन ही इज़ अ CEO ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे मतलब है कि शोले पिक्चर में अफजल खान के लिए बोलता है संजीव कुमार की मेरे को गब्बर चाहिए है मुझे बंदा चाहिए हाँ वो मेरे को चाहिए तो इट इज़ नॉट कहाँ बैठा होगा और उस टाइम पे ये होता था कि इनके सारे बड़े लीडर बैंकॉक बांग्लादेश बर्मा ऐसे बाहर की कंट्री बाहर ये ग्राउंड में तो उन्होंने गरीब लड़ने के लिए छोड़ रखे होते हैं यार खुद थोड़ा ही ना के लड़ते हैं वो तो खुद भी अब्रॉड रह रहे हैं बच्चे भी अब्रॉड रह रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पर गरीब जनता को फंसा रखा है AK-47 इट इज़ लाइक दैट ये तो है सर
ओके, तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि किसी तरह से उसकी इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाए। मेरे को ये था कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो वो ढूंढता ढूंढता मेरे पास आएगा। ठीक है, नॉर्मली होता नहीं है कि जिसके लिए वो लेटर निकाल दें उसको छोड़ें वो। और दूसरा मेरे को ये था कि मैंने तो चलो पहले 2 साल लोगों के साथ काम किया है, ये नए लड़के आए हैं, नई यूनिट है, तो मेरी वजह से इनका नुकसान ना हो जाए ज़्यादा। आल्सो समवेयर देयर इन माइंड। और फौज में एक चीज़ और सिखाई भी जाती है कि आप लड़के दूसरे को मार के ही खुद जिंदा रह सकते हो, डर गए या पीछे हट गए तो फिर आपका बचना मुश्किल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ढूंढ रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था। लेकिन इट वाज एग्जैक्टली आफ्टर 1 वीक, 1 फरवरी को मैं रात को पूरा घूम घाम के सुबह 4-5 बजे आके सोया था। और सोने से पहले मैंने सेंट्री को बता दिया कि मेरे को 10-10:30 बजे से पहले ना उठाया जाए। कोई 7:30-8 बजे वो सेंट्री आ गया कि साहब कोई मिलने के लिए आया हुआ है। तो मैंने उसको यही पूछा कि पुराना बंदा है या नया है। बोला नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। तो मैं बोला यार तुम उसको टालो थोड़ी देर मेरे को। तो वो बोला नहीं साहब, वो बोल रहा है कि जल्दी है और मिलना है। तो मैं बोला ठीक है, उसको चाय वाय पिलाओ। तो मैं गया, जाके उससे मिलने की कोशिश की। उसने पहली बात जो मेरे को बताई कि साहब मैं आपको अकेले मिलना चाहता हूँ। मैं उसको अपने कमरे में ही लेके आ गया। मैं बोला चलो, पर उससे ज़्यादा सेफ सिक्योर जगह नहीं है तेरे से बात करने की। तो उसने मेरे को बोला कि उसी बंदे की खबर है जिसने आपको चिट्ठी लिखी थी। ओह। तो मैं बोला यार ये कैसे बता सकता है तू? बोलता है कि हाँ। तो कई बार ना लोग वहाँ पर मेरे से पैसे पूसे लेने के लिए आते थे कि इसको जाके झूठा सच्ची खबर देंगे तो ये पैसे दे देगा। उनका काम ही होता है, कई इन्फॉर्मर होते हैं कि जो है। तो आपको लगा कि ऐसा कुछ ना हो? तो मैं बोला यार कितने पैसे चाहिए, ले और जा, मेरे को सोने दे, तंग मत कर। तो बोलता नहीं मैं सही बता रहा हूँ। तो फिर मैं उसको और उससे बात कर रहा हूँ कि बता कैसे जानते हैं। लास्ट में मैंने उसको बोला कि यार अगर तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हैं ना, और अगर वो मेरे को नहीं मिला तो मैं तेरे को मार दूंगा, जस्ट डराने के लिए कि नहीं तो चले जाएगा। बिल्कुल सर। बोलता है साहब मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पास उसकी खबर है, और अगर वो नहीं मिलता तो मेरे को मार देना। अच्छा, he was that confident? मेरे कान खड़े हो गए। लेकिन मैं बोला यार वाई टू मिस द इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सर। जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ वो मेरे को दरवाजे पे मिल रही है। बिल्कुल सर। और मैं फटाफट, मेरे पास मेन पावर भी कम थी मेरी, सुबह 2 आरोपी निकल गई थी। तो जो भी बंदे थे मैंने उनको फटाफट इकट्ठे किया और लेके भाग के गया। कुछ पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की, उनको लेके तो गए और एरिया कार्डन कर दिया पहले। जैसे ही कार्डन करने के बाद मैं और वो सोर्स मेरे साथ ही है। बिल्कुल सर। ठीक है, वो मेरे साथ ही है और उसको हम दोनों एक पेड़ के पीछे खड़े हैं। तो सडनली किसी ने फायर कर दिया ऊपर, जबकि मैंने उनको बोल रखा था कि फायर कोई नहीं करेगा, फायर पहला अगर होगा तो मैं करूँगा। तो मैंने रेडियो सेट पे पूछा कि फायर किसने किया, तो बोले साहब इधर झाड़ी ही ली और हमने फायर कर दिया। एंड देन आई रियलाइज कि कोई भागता हुआ मेरी तरफ ही आ रहा है। तो जैसे ही मेरी तरफ आ रहा था तो मैंने इसको पीछे कर दिया और मैं पेड़ से थोड़ा सा साइड पे हुआ देखने के लिए सर, बिकॉज आई नॉट बी एबल टू सी, अगर मैं पेड़ के पीछे ही खड़ा हूँ तो मैं ऐसे हुआ तो वो AK-47 लेके भागता हुआ आ रहा है और सडनली मतलब कि डिस्टेंस इज दिस मच, 5-6 मीटर। और वो तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ है। तो मैं भी रेडी था, वो भी रेडी, लेकिन वो उस शॉक में ना, जब तक वो बाहर आता उसको 30 सेकंड लगने थे, 20 सेकंड, तब तक आई फायर्ड एंड ही डाइड। अच्छा, ही वाज दैट गाय ओनली सर जिसने लेटर लिखा था। सो मिलिटेंट जो भागता हुआ आ रहा था, ही वाज जस्ट शॉक मेरे को देख के ना कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। और जब तक ही वाज एबल टू रिएक्ट तब तक यू नो माय AK-47 डन द जॉब। और वो मतलब कि ऐसे ही गिरा, कुछ भी नहीं, रिएक्ट ही नहीं कर पाया। एंड दिस चैप द गाइड सोर्स विद मी, ही स्टार्टेड शाउटिंग कि मर गया सर। सो दिस इज हाउ। अच्छा, मेन टाइम क्या हुआ कि वन मोर मिलिटेंट जो शायद और पीछे से भागता हुआ आ रहा होगा, तो ही स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स अदर डायरेक्शन। जब इधर से फायर की आवाज आई ना तो वो पहले इसी के पीछे भागता हुआ आ रहा था, वो दूसरी तरफ भागता शुरू हो गया और वो ना AK-47 पीछे की तरफ भाग के मतलब कि पीछे की तरफ फायर कर रहा है और आगे भागा जा रहा है। तो ही वाज जस्ट अ सिंपल पॉचर, मतलब कि उसको हम ठोक दिया। 3-4 की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वी वर एबल टू यू नो सच दीज टू ओनली। राइट सर। शायद भागे होंगे या उसने बताया होगा कि 3 के 4 कर दिए होंगे कि
थोड़ी सी कई बार इंफॉर्मेशन बड़ी करके बताओ ना सर तो वो सोचते हैं कि जल्दी रिएक्शन होगा सर इसके वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन क्यों दी सर एक्चुअली इसी मिलिटेंट जिसने मेरे को चिट्ठी लिखी थी उसके साथ उसका भाई काम करता था मिलिटेंट था वो भी ओके सर ही वॉज कॉट बाई पुलिस और 6 महीने वो जेल में था और 6 महीने के बाद जब उसको बेल मिली तो घर वालों ने उसको समझाया तो वो घर पे ही बैठा हुआ था सर अब ये उसको डेली बुलाता था कि तुम वापस आ ज्वाइन कर तुम अभी छूटा हुआ है तो और वो वापस कंटिन्यू नहीं करना चाहता था मिलिटेंसी के लिए राइट सर सो क्या हुआ कि एक दिन उसको बुलाया तो उसने बोला कि मैं नहीं करना चाहता फिर बोला 2 दिन सोच के वापस बता 2 दिन के बाद फिर बुलाया तो उसने मना किया तो इसने उसको गोली मार दी उसी के भाई को अच्छा टू टेक रिवेंज ही डिड दैट ही केम विद द इंफॉर्मेशन एंड शी शेयर्ड इट विद मी राइट सर बट ये सर ये फोर्सफुली ऐसे कराते हैं इनसे ऐसे ज्वाइन कराते ऐसे ही हैं होता है मैं बता रहा हूँ ना ये जो गरीब बच्चों को मरवाना है यार हमारे यूथ का बेड़ा गर्क करना है ये है इंसर्जेंसी और कुछ नहीं है कोई मोटिव नहीं है कोई किसी को नहीं इंडिपेंडेंस मिली है 47 से लेके आज तक कि हम बंदूक उठा लेंगे तो हमारे को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी मिली है किसी को नहीं सर सो इट इज़ जस्ट उनका सर्वाइवल और उसमें क्या होता है कि गरीब अनएजुकेटेड यूथ जो है जिसको खाने के लिए नहीं है वो फटाफट गन उठा लेता है क्योंकि गन है तो पावर है तो आप किसी को डरा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो राइट सर तो ऐसे ब्रेन वॉश करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एग्जैक्टली राइट सर बट सर दिस एक्सपीरियंस कि एक थ्रेड लेटर मिलना फिर 7 दिन के अंदर उस बंदे को पकड़ना और फिर उसको मारना इट इज़ लाइक पूरा इट लुक्स लाइक अ मूवी पूरा एंड a task that is next to impossible but for Indian Army everything is possible I would say that's the spirit of Indian Army यार वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना इस पूरी स्टोरी में वो लेटर बीच में आ गया है इसलिए ये थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टेड सी लग रही है और ज़्यादा फिल्मी लग रही है बाकी ऐसा नहीं है बहुत सारे लेटर थ्रेट लेटर वो देते रहते हैं और फौज का ये रूटीन काम है जो भी जहाँ पर इंसर्जेंसी है जहाँ पर मिलिटेंसी है वहाँ पर फौज भी है जहाँ पर फौज और मिलिटेंसी दोनों है तो वहाँ पर ये बिल्ली चूहे वाला खेल चलता ही रहता है इसमें कोई वो नहीं है कि मैंने कुछ बड़ा किया है राइट सर तो मैं थोड़ा सा ओवररेटेड बंदा हूँ बाकी पूरी इंडियन आर्मी कर रही है काम नहीं सर वी सैल्यूट यू for this. Thank you so much. Thank you, sir. But whole Indian Army is doing all this. Right, sir. So, sir, I can see a brooch on your blazer that like it has something written like "bravest of the brave" on it. So, sir, what does that mean? दीपक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आई एम वेरी लकी मैन एंड ब्लेस्ड टू बी इन सच ए बटालियन जिसको ये तमगा मिला हुआ है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव. सर तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर विद यू अबाउट माई बटालियन 22 Grenadiers, which is also known as अशोका पल्टन. तो 22 ग्रेनेडियर का ये है कि ये 1988 जून 1988 में रेज हुई और 1995 में हमारे को ये ऑनर मिल चुका था ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का एंड वी बिकम द फर्स्ट ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव ऑफ इंडियन आर्मी. उससे पहले मैं 2-3 हीरोज़ हैं जिनके आपको नाम बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेजर R.K. जून, अशोक चक्रा, पोस्टोमसली शौर्य चक्रा का नाम, उसके बाद राकेश सिंह, अगेन अशोक चक्रा. तो इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मिलिटेंसी. और राकेश मतलब कि लेफ्टिनेंट राकेश ही वाज द फर्स्ट मैन टू गेट अशोक चक्रा ऑन कश्मीर सॉइल. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में पहला अशोक चक्रा लेने वाला लेफ्टिनेंट राकेश थे. और उसके बाद फॉलोड बाय जून सर हु वाज पहले शौर्य चक्रा एंड पोस्टोमसली ही गॉट अशोक चक्रा. एंड उसके बाद एक हमारे जारदिश अहमद थे, नायक जारदिश अहमद, ही वाज NCO, ही वाज शौर्य चक्रा बार. और उसको पोस्टोमसली कुछ नहीं मिला, नहीं तो उसके पास 3 शौर्य चक्रा होते. ठीक है. एंड वी हैव अनदर यूनिक ऑनर कि 22 Grenadier इज़ वन सच ए बटालियन कि जिसमें 3 डबल चक्रा अवार्डी हैं. जैसे जून सर का मैंने बताया है अशोक चक्रा एंड शौर्य चक्रा, जारदिश अहमद 2 शौर्य चक्रा, डबल शौर्य चक्रा, एंड मैं भी हूँ में कीर्ति चक्रा शौर्य चक्रा. ठीक है. तो यू विल फाइंड नन अदर बटालियन हैविंग 3 चक्रा अवार्डी. ठीक है. सो आपकी पॉडकास्ट से मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा NCC वाले दोस्त हुआ इंस्पायर्ड फॉर आर्मी. तो 22 ग्रेनेडियर को
ध्यान में रखना, चाहे आप रैंक्स में जाना चाहते हो, चाहे आप कमीशन ऑफिसर बनना चाहते हो, कि इससे ब्रिलियंट मतलब कि आर्मी की यूनिट, इन्वेंट्री की यूनिट जो है इंडियन आर्मी में नहीं है. So this is about हाँ, within 7 years ब्रेवर्स ऑफ द ब्रेव होना, डबल हाईएस्ट गैलेंट्री ले लेना. और अदर देन दैट मेरी यूनिट के पास आज की डेट में अराउंड 123-124 अवार्ड है, गैलेंट्री अवार्ड. हाँ, 8 to 10 साइटेशन है, विच इज रेयर, विच इज अनमेचेबल. ये किसी के पास नहीं है. थैंक यू, यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस ब्रेवर्स ऑफ ब्रेव. Achha, thank you for that. Our honor, sir, to listen to this. Thank you so much, sir. So, sir, before we end this podcast, is there any message you want to convey to the cadets listening to you so that they can better contribute to Amritkal की NCC? बहुत ही स्मार्ट कैडेट हैं यार, बहुत ही स्मार्ट एनसीसी है. मैसेज तो आपका जो मोटो है सर, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, सर, अगर आप रिलीजियसली ये लाइफ टाइम फॉलो करो तो और कुछ चाहिए ही नहीं. बिल्कुल सर, कुछ करने के लिए दैट विल सर्व द पर्पस. सर, और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस. लेकिन अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो, फिजिकली फिट हो हैं, और बाकी सारा कुछ हो जाता है. लेकिन वन शुड बी फिजिकली फिट, स्ट्रांग एंड क्योंकि फिट इंडिया जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है इस ड्यूरेशन में. बिल्कुल सर. बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन. पीपल आर प्राउड ऑफ यू यार, दैट इज़ व्हाट. और जो भी आपकी 3 साल की लर्निंग होती है या जिस भी पीरियड की, अगर यही पंपलेट आप लाइफ टाइम फॉलो करते हो, मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी लाइफ में आपको इस तरह का कदम नहीं डगमगाएंगे. यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल बी ग्रेट एसेट टू द सोसाइटी. Thank you so much, sir. Thank you so much. Most welcome. So, thank you so much, sir. It was truly an honor for me to share the same frame with you. Thank you so much. Same here. Yeah. Thank you so very much, and truly honored to be in this podcast. Thank you so much, sir. Thank you. Jai Hind.